Hello students, instances of irony from your prose section. So let us start with lesson first, that is footprint without feet. First of all, tell me if you all are asked instances of irony from your prose section, will you people be able to answer this question? Because elements of irony from lesson first is not there in your exercise at the back of your lesson. ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है तो क्या आप उसको कर पाओगे? कर ऑब्वियसली तभी कर पाओगे इफ यू हैव रेड द लेसन प्रॉपरली, थॉरोली, जो मैं आपको हमेशा से बोलती आई हूँ. ठीक है, सो लेट मी टेल यू instance of irony in lesson number 1, that is footprint without feet. So these are lines in your lesson only. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight at her, legs foremost, as she and her husband turned away in terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Mrs. Hall almost fell down and stared in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. My poor mother used to sit in that chair, she moaned. To think it should rise up against me now. So in this line, when Mrs. Hall said, my poor mother used to sit in that chair, if you have read the lesson, you as a reader know it, कि there is nothing such type of spirit in that room. ऐसा कुछ भी उस रूम में नहीं है. बिकॉज एज अ रीडर वी नो, हमें पता है, हमने ये कहानी पढ़ी है, हमें पता है कि इस तरह की कोई चीज़ उस रूम में नहीं थी. वो कौन था? वो ग्रिफिन ही था, जो कि उस मेडिसिन के कारण, जो लेने के कारण बंदा इनविजिबल हो जाता था, वो उस चेयर पे था. सो यू कैन राइट डाउन दीज लाइन्स इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो. आपको पता है कि इसमें आयरनी है, थोड़ा सा, मतलब यू कैन से ह्यूमरस एलिमेंट्स भी मे बी आप इसको यूज़ कर सकते हो. कि और आपको एक बात और बताऊं कि आपको क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने वाला है. ठीक है ना? क्वेश्चन को 3 मार्क्स का बनाना आपके हाथ में है. दिस इज इन योर ओन हैंड. आपको इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप समरी, आप उसको रीड कीजिए, समरी को अंडरस्टैंड कीजिए, चाहे वो पोइम है चाहे वो प्रोज है, तभी आप उसको कर पाएंगे. अगर आपको 3 मार्क्स का पूछा गया है तो आपको 3 मार्क्स का ही लिखना है. आपको बहुत लंबे चौड़े पेज, 2-4 पेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको 200 वर्ड्स का पूछा गया है 6 मार्क्स का, तो आपको उतना ही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. कम नहीं, 6 मार्क्स का कम नहीं लिखना है, 3 मार्क्स का है ज़्यादा नहीं लिखना है. अंडरस्टैंड? नाउ एलिमेंट्स ऑफ आयरनी फ्रॉम एन एक्सीलेंट फादर. I see no occasion for that. You and girls may go, or you may send by themselves, which perhaps will be still better, for as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party. You have read the whole story. पूरा आपने स्टोरी पढ़ी है. You know the story revolves around 2 main characters, Mr. and Mrs. Bennet, having 3 daughters of marriageable age. ठीक है? तो Mr. Bingley, a tenant, a young man, comes to live in the neighborhood of this couple. So when she insists her husband to go to see Mr. Bingley so that he may fall in love with one of their daughter because they are of marriageable age. So here in these lines we look some instances of irony. अब देखिए, जब एक मदर खुद से एक फादर को बोल रही है कि जाइए आप उनसे मिल के आइए, शायद उनको कोई हमारी बेटी पसंद आ जाए, एंड द फादर इज यूजिंग दीज वर्ड्स कि आप जाओ, आप खुद जाओ, हो सकता है कि आप उन्हें, मेरी जगह आप उन्हें पसंद आ जाओ.
आर यू पीपल फॉलोइंग मी, कि वो उन्हें मजाक में कह रहा है मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी, कि तुम्हें वो शायद हो सकता है तुम्हें पसंद कर ले। तो इन दिस लाइन सामने यहाँ पे आपको वो आयरनी दिख रही है। एंड अगेन as I told you, the whole lesson revolves around the conversation between the couple, है ना। वो अपनी बेटियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कहीं पे मजाक में, कहीं पे गुस्से में, तो हर चीज़ को वो लाइटली ले रहा है। उसका हस्बैंड जब वो उसे इंसिस्ट करती है कि जाओ मिस्टर बिंगले से मिल के आओ, शायद उन्हें हमारी कोई बेटी पसंद आ जाए, तो वो उसको चिढ़ाता है ना, तो तब वो रिप्लाई देती है, यू टेक डिलाइट इन वेक्सिंग मी, यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर रव्स। तो ये मतलब एक फ्रेजल वे में उसने यहाँ पे आयरनिकल एलिमेंट प्रोड्यूस किया है। यू टेक डिलाइट इन वेक्सिंग मी, तुम मुझे क्या है, तुम्हें मुझे चिढ़ाने में गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें मुझे तंग करने में गुस्सा, तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है, जैसे हम अक्सर हस्बैंड वाइफ में ये बातचीत होती है, ठीक है ना। तो फिर वो आगे से रिप्लाई दे रहा है कि यू मिस्टेक मी माई डियर, आई हैव अ हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्व्स, दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स। तो ये जो है यहाँ पे भी, इस लाइन में भी आयरनी है। अगेन व्हेन हिज सेकेंड डॉटर वॉज एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग अ हैट, जब वो एक अपना हैट ट्रिम कर रही थी, तो मिस्टर बेनेट सडनली एड्रेस्ड हर विद फ्यू वर्ड्स, अ लाइन लाइक, आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट लेजी। देयर इज अगेन एन आयरनी इन दिस लाइन। सो अगर आपसे पूछा जाए कि इस लेसन में आयरनिकल एलिमेंट्स का या ह्यूमरस एलिमेंट्स का कोई क्वेश्चन आता है, तो यू कैन यूज दीज लाइन्स इन योर ओन वे, यू कैन राइट इन योर ओन वे। थोड़ा सा उसे आप पॉलिश्ड वे में, ये मैंने आपको लाइन्स बता दी हैं, दीज लाइन्स आर इन योर लेसन, इन योर बुक, टेक्स्ट बुक, तो आप उसे पॉलिश्ड वे में अपने हिसाब से, जैसा जिस तरह का आपका वे है, जिसे आपको कंफर्टेबल, अपने कंफर्ट जोन में रह के आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। यू हैव रेड द लेसन, आपने लेसन पढ़ा है। ऑन पेज नंबर 21 देयर आर लाइन्स, डियरेस्ट किटी, our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to evening, yes, you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on the earth. So these lines are full of irony. देखो यहाँ पे क्या है कि अब जैसे क्लास का एक सीन दिखाया गया है कि बच्चे आपस में ही डिसाइड कर रहे हैं, रिजल्ट निकलने वाला है, बेट्स लगा रहे हैं कि तुम जाओगे, मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, वो जाएगा, जैसे अक्सर ये एक नॉर्मल रूटीन का सीन है। तो ये लाइंस को आप, मैंने जैसे आपको पहले कहा, अपने वे में आप इन लाइंस को उठा के थोड़ा सा करके आप इसको रिप्लाई दे सकते हैं, अगर आपसे सपोज कीजिए इस लेसन में आपका इंस्टेंस ऑफ आयरनी पूछा जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट लेसन, देयर आर, आई थिंक देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन फॉर द लॉन्ग वॉक ऑफ टू फ्रीडम एंड लास्ट सर्मन एट बनारस, ठीक है। तो उन दो लेसन्स में मुझे कोई आयरनी नहीं दिखती है, बिकॉज लेसन जो है बहुत ही यू कैन से एक जो नेल्सन मंडेला का लेसन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो पूरा जोश से भरा हुआ है, और उनका लेसन जो है वो अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट है वो लेसन, उसका तो थीम ही अलग है। और उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका सर्मन एट बनारस, वो भी एक छोटा सा लेसन है सिंपल वे में, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का जो एक लेसन जो प्रीचिंग है वो बताई गई है उस लेसन में। नाउ इन पापाचीज मौत, पापाचीज मौत में क्या है, आपको यहाँ भी अगर
इफ़ यू पीपल हैव रेड दिस लेसन थॉरोली, आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा सीरियसनेस लगी होगी इस लेसन में कि दोनों कैरेक्टर्स, बोथ द कैरेक्टर्स आर सीरियस कैरेक्टर्स अपनी अपनी जगह। अपना हमारा सोचने का, देखने का और समझने का नज़रिया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे मैं अगर ये लाइंस पढ़ती हूँ यहाँ पे मुझे आयरनी दिखती है। In the evenings, when he knew visitors were expected, he would sit on the veranda and sew buttons that weren't missing onto his shirts to create the impression that Mamaji neglected him. To some small degree, he did succeed in further corroding Ayman's view of working views. आपको पता है कि इस लेसन में मामा जी पापा जी दे आर हस्बैंड वाइफ, ठीक है ना, वो हस्बैंड वाइफ है, दोनों में पट्टी नहीं है, और बिकॉज वो जो फीमेल कैरेक्टर है इज 17 ईयर्स यंगर देन द मेल कैरेक्टर, और शी इज़ वेरी टैलेंटेड ऑल्सो। तो थोड़ा सा जो मेल कैरेक्टर है उसमें जेलेसी है, वो नहीं चाहता कि लोग उसकी तारीफ करें। तो हालांकि वो एक ही घर में रहते हैं, तो वो जानबूझ के वरांडा में उसके सामने घूमता है, और बटन, चाहे उसके कोट के बटन टूटे नहीं होते, फिर भी जानबूझ के तोड़ के वो उसको सिलाई करना शुरू कर देता है कि आने जाने वाले लोग देखें कि ये मेरी परवाह नहीं करती है। कौन? वो फीमेल कैरेक्टर जो कि उसकी वाइफ है। He bought the sky blue Plymouth from an old Englishman in Munnar. He became a familiar sight in IMNM, coasting importantly down the narrow side in his wide car, looking outwardly elegant but sweating freely inside his woolen suits. He wouldn't allow Mamaji or anyone else in the family to use it or even to sit in it. The Plymouth was Papaji's revenge. यहाँ पे these lines are also full of irony. क्या है कि यहाँ पे उसने एक स्काई ब्लू प्लाईमाउथ नाम की एक कार खरीदी है। अभी मैंने रिसेंटली जो वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हैं, अगर तो आपने उसमें रिप्लाई दे दिया, इट मीन्स यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। अगर आपने उसमें मुझे रिप्लाई मिला है तो इसका मतलब आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और रिप्लाई भी कर रहे हैं, बिकॉज स्काई ब्लू प्लाईमाउथ इज अ कार। वो एक कार थी जो कि पापा जी ने जानबूझ के चिढ़ाने के लिए खरीदी थी। और दूसरा इसमें है कि वो एक उसका रिवेंज था, अपने घर वालों से रिवेंज लेने का एक अलग तरीका था कि वो अपनी कार में ऐसे ही चाल के बिठा के चलते थे, और किसी को बैठने नहीं देना अपने कार में। और वो 3 पीस, गर्मियों के दिन वो 3 पीस, अंदर से पसीना बह रहा है और ऊपर से 3 पीस गर्म सूट पहन के चले जा रहे हैं। ठीक, तो ये दिस इज ऑल्सो these lines are also ironical lines, you can say. So next, Ghat of the Only World is not in your syllabus. Now, Merchant of Venice on page number 56. If you have read these lines, when Jew replied to one of the questions from Antonio, Sir Antonio, on the reality, many a time and often you have railed at me about many monies and many asrides, and I have borne it with a patient shrug, for suffering is the badge of all our tribe, and then you have called me unbeliever, cutthroat dog, and spit upon my Jewish garments, and spurned at me with your foot, as if I was a cur. Well, then, it now appears you need my help, and you come to me and say, Shylock, lend me monies. Has a dog money? Is it possible a cur should lend 3,000 ducats? Shall I bend low and say, Fair sir, you spit upon me? On Wednesday last, another time you called me dog, and for these courtesies I am to lend you monies. So, ये तो पूरी की पूरी लाइन्स आई थिंक कि ये भरी पड़ी है आयरनी से, बिकॉज जिस तरह से बोलने का तरीका है शाइलॉक का, क्या कभी एक ऐसे है, शेल आई बेंड लाओ, मतलब कि क्या मैं झुकूं और ये कहूँ फेयर सर आपने मुझ पे थूका और मैं आपको पैसे दूं? मतलब वो उससे पैसे इंटरेस्ट में मांगने आया ना, क्योंकि पूरा लेसन आपने पढ़ा है, उसमें है कि वो जब भी आपस में मिलते थे एक दूसरे को, वो हमेशा उसको गालियाँ ही देता था कि तुम बुरे हो, तुम लोगों को ये करते हो, वो करते हो। फिर वो यहाँ पे आके जब पैसे मांगने मतलब इंटरेस्ट पे शाइलॉक के पास आता है एंटोनियो, तब वो ये लाइन्स यूज़ करता है कि हैज़ अ डॉग मनी, है ना।
तो जब आपको खुद से ही पता चल जाएगा लिखने से, उनके बोलने के मतलब जब आप उसको रीड करोगे कि ये लाइंस में क्या है, आयरनी है, ह्यूमरस है, क्योंकि जब वो ये कहता है कि Sherlock lend me monies, has a dog money, is it possible a cur should lend these 3,000 ducats? तुमने मुझे इतनी गालियां निकाली और उन गालियों के बदले क्या तुम्हें मैं पैसा दूं? ठीक है, तो सो दिस इज दीज क्वेश्चंस, दीज इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी फ्रॉम योर प्रो सेक्शन। तो आप इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए, और अब जब आप लिखेंगे, इसे लिखने के लिए अपना, मैंने कहा आपको मेरा काम है आपको बताना कि इन लेसन्स को रीड किया मैंने, लेसन्स के बीच में से ढूंढी है जो आपकी रीडिंग है, स्टोरी है। These are not in your book, any guide, any model test paper, कहीं पे भी नहीं है। ये मैंने आपकी बुक में से ये लाइंस ढूंढी हैं, आप इसे देखिए और अपने तरीके से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए।